कितने लोग परमेश्वर के क्षणों में कह सकते हैं, प्रभु हालेलुया, मेरे जीवन में आइए परमेश्वर, मेरे मन में आइए परमेश्वर, मेरे शरीर में समाइए परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कीजिए, आमीन, मेरे द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया, एक बार फिर हम मिलकर गाएंगे, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में परमेश्वर के दास जॉनसन है और परमेश्वर के वरिष्ठ दास हमारे बीच में है।
वो प्रार्थना करके इस मीटिंग की आशीष के लिए आज से एक इनॉग्रेशन की प्रेयर के लिए मैं उनको स्वागत करना चाहता हूँ। भजन संहिता क्या आप सभी परमेश्वर के चरणों में कुछ देर खड़े हो जाएंगे? हम मिलकर एक भजन संहिता पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले हैं, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके कान निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा। Praise the Lord. Hallelujah. The Lord has done great things. The Lord has been so good to us in the past 40 years of the church started in 1985. Since then, the Lord has done great things. The Lord enabled us to start Malayalam service, and the Lord enabled us to start Hindi service, Tamil service also, and the Lord enabled us to start English service also. And now we have come to inaugurate this Hindi service. Hallelujah. We are going to worship the Lord in spirit and truth in this hallelujah worship services. And the Lord is present, the Lord is Almighty, the Lord is our Creator. He has done great and mighty things for our sake, and He is alive, and He is interceding for our behalf at the right hand of the Father. As we gather together, we should experience the presence of God, experience the power of God, and as we start this service, the Lord's provisions would be there, the Lord's protection, the Lord's guidance, the Lord's leading, the Lord's intervention. We need so that many may listen to the word of God, many may be transformed, many may be repentant, many may be ordered to the church, and many people who come for treatment may be healed, and they may experience the power of God in their bodies and in their spirit. And we are going to inaugurate this service. Hallelujah. The Lord's presence is so real in our midst, as we have hallelujah, heard so many wonderful spiritual songs in Hindi. And may the Lord continue to help the children of God to sing and praise the Lord, worship the Lord at this place, and the name of the Lord be lifted up and glorified. And may the power of God, hallelujah, reveal in the lives of men and women as the
your children, hallelujah, as God's children gathered together. Praise the Lord, hallelujah. Let's pray. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. He had done great and mighty things. Hallelujah. He redeemed our souls. He healed our sicknesses. He heard our praise. He answered our praise. Hallelujah. We bless your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, we thank you for blessing us so much. Thank you, Lord, for giving your Son, Jesus Christ, to die for us. And thank you, Lord, for the work of redemption which you have done on the cross of Calvary. And thank you, Lord, for fulfilling the work of the Father entrusted in you. And thank you, Lord, for finishing the saving work of the hallelujah souls. And thank you, Lord, for the price you paid. And thank you, Lord, for shedding your blood, even to the last drop of your holy blood, so that we could be washed and cleansed and made a holy nation. Thank you, Lord, for making us your own children, enabling us to come boldly to the throne of grace. Bring our praise and request you as we pray together. We ask, oh Lord, you to intervene for our behalf. Speak for our behalf. You stretch both your righteous right hand in favor of us and help us, Lord, to see greater things in the coming days. Thank you, Lord, for enabling us to start this Hindi worship service. You be the Lord of this service. You take full authority, and we commit the service fully into your hands as we start. Hallelujah. Grant us the counsel, courage, strength, and power from above, and lead us on, guide us on, and help us, O Lord, to see what God could do for us. And nothing is impossible with you. You are our Savior. You are our healer. You are our sustainer. You are all in all to us. And we bring all the glory and honor to you, Lord. And as we continue, hallelujah, this ministry, your presence would be with all of us and grant us the grace so abundantly from above, and grant us the spiritual gifts. And we pray for the servants of God who are, hallelujah, committing their lives for this, hallelujah, service. And you strengthen them, equip them by your word and by your power, and use them mightily in your ministry, so that hundreds may be blessed and souls may be added to the church. And we commit this service fully to your hands. Hallelujah. And we thank you for you are hearing our praise. You are answering our praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I inaugurate this in the worship service for the glory of God and for the blessings of your children. Thank you, Lord, for hearing our praise. In Jesus Christ's name, amen. Amen. God bless you all. Hallelujah. Thank you, Pastor जी. आइए हम कुछ देर और परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं. हालेलुया. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आत्मा परमेश्वर है, गॉड इज स्पिरिट. और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें. हालेलुया. परमेश्वर की पवित्र बाइबल इस प्रकार हमें सिखाती है कि यहोवा राफा है. राफा का अर्थ है कि वो चंगाई देने वाला परमेश्वर. हमें से कई लोग अलग अलग बीमारियों के साथ हमारे परमेश्वर के चरणों में आए होंगे चंगाई पाने के लिए. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर चंगाई देता है. हालेलुया. आमीन. उसका लहू जो क्रूस पर उसने आज से 2026 साल पहले बहाया, हालेलुया, उसका खून की एक एक बूंद हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए. हालेलुया. वो परमेश्वर आज भी जीवित है. वो यहोवा शालोम है जो हमें शांति देता है, हमारे मन को अपने
ईश्वर की खुशी से करता है। हालेलुया। हम कुछ गीतों को गाते समय ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया।
आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया, तुम मुझसे मांगो, हालेलुया, आमीन, तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, हालेलुया। आज आपकी क्या जरूरत है परमेश्वर जानता है। आपको चंगाई की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत है, हालेलुया। जीवन की परेशानियों के बीच में आपको एक राह दिखाने वाला चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को जानता है, हालेलुया, आमीन। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमारे प्रार्थना करने से पहले, हमारे मांगने से पहले, आमीन, हमारी क्या जरूरत है, हमारे हृदय की इच्छाओं को वो जानने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हालेलुया, जब हम पूरे दिल से अपने आप को समर्पित करते हैं, आमीन, हालेलुया, जब हम एक कदम परमेश्वर की तरफ रखते हैं, आमीन, हालेलुया, जब हम परमेश्वर की तरफ एक और कदम रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर भी हमारी तरफ बढ़ता है, हालेलुया। हमारे और परमेश्वर की दूरी की जब, हालेलुया, हमारे बीच में जो दूरी है वो जब कम होती है, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, हालेलुया, परमेश्वर हमें देता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे, उसकी जैसा, आमीन, हालेलुया, कोई परमेश्वर नहीं, आमीन, उसके समान से प्रेम करने वाला और कोई परमेश्वर नहीं, हालेलुया, आमीन। हम अपने आप को समर्पित करेंगे, एक और गीत गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे, हालेलुया। एक और गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया। वो परमेश्वर सारे देवताओं में, आमीन, महान, उसकी जैसा और कोई भी नहीं है, हालेलुया, आमीन। हमारे पाप के दाग को मिटाने के लिए उसने अपना पावन रत्न हमारे लिए बनाया, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है। Swear to be
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं खुदावंद प्रभु। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारी छोटी शुरुआत को आशीषमय बनाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी नहीं, हालेलुया, आप महान हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम जैसे मामूली लोगों के द्वारा प्रभु आप अपना कार्य करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु क्योंकि आपने हमें चुना है। हालेलुया जीसस। तेरे पास हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। सच में बहुत अच्छी आराधना की और प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर फील किया। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है और उसकी लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और खुशी की ये बात है कि हिंदी चर्च जब बेलूर में शुरू हुआ है संडे को, तो सच में हम लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हमसे ज्यादा उत्साहित है और वो खुश हैं इस बात से कि हमारे बेटे बेटियां यहाँ पर एक जगह पे आए और आकर वो हमें अपनी बातें बताएं और उनसे हमारी बातचीत हो और वो बातों को सुनकर आपकी जिंदगी में जो भी दिक्कतें और प्रॉब्लम और परेशानियां हैं तो उनकी आपकी जिंदगियों से वो खत्म करें और आपका रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होने पाए। और वो खुशी खुशी वो चाहते हैं, उनकी इच्छा ये है कि वो हमारे साथ रोज बातचीत करें और हम रोज उनके बस्ती में जाएं। हम क्या करते हैं, वो हमारा इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं हम 12 बजे प्रेयर करेंगे, 8 बजे प्रेयर करेंगे, हम परमेश्वर पुकारते हैं, बुलाते हैं, प्रभु तू आ जा। वचन
कहता है कि हम जहाँ कहीं घुटने भी टेक देंगे, जहाँ कहीं से पुकारेंगे, वो वहीं पे हमारे लिए सुनने के लिए तैयार है। वो हर टाइम हमारे लिए रेडी है। वो हर टाइम हमें हर एक जगह पे, हर एक समय पर, जिस समय हम उसे पुकारेंगे वो उसी समय हमारी सुनेगा, वचन कहता है। बस आज क्यों नहीं सुन रहा है कि आपको आज देखना है आपका रिश्ता कैसा है, और वो रिश्ते को जहाँ कहीं टूटा था और जहाँ कहीं आप परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे थे, या परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपकी जिंदगी में काम करें और आपसे बातचीत करें और आपका रिश्ता बेहतर हो। इसलिए इज्जत, और आपकी जिंदगी में कोई बीमारी या प्रॉब्लम या तंगी या परेशानियों से या टूटे पीछे मन से आए हैं या आंसुओं के साथ आए हैं, आप हड्डियों के साथ आए, बीमारियों के साथ हैं, कर्जों के साथ हैं, श्राप बंधन थे आपकी लाइफ में, वो सब खत्म कर देगा और आपकी जिंदगी इस पृथ्वी पे आप खुशी खुशी बिताने पाएंगे और उसके बाद हमेशा हमेशा उनके साथ स्वर्ग में रहने पाएंगे। उनकी इच्छा ये है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अभी हम टेस्टमनी में चलेंगे। अगर किसी की कोई गवाही है तो वो आकर दे सकते हैं, जो भी आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। तो क्योंकि गवाही के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप लोग गवाही के लिए 2 मिनट उनकी तारीफ के लिए, आपकी जिंदगी में जो भी उन्होंने कोई काम किया हो और वो काम के लिए आप उनकी तारीफ करने के लिए आप लोग गवाहियां दे सकते हैं, जो भी आपकी जिंदगी में काम हुआ हो। सबसे बड़ी चीज मैंने यही है कि हम लोग आज जीवित हैं और सांसें दे रखी हैं और प्रभु के भवन में हैं। बहुत लोग दिक्कतों में, सीएमसी में देखो कितने छोटे छोटे बच्चों को कैंसर का कोई आस नहीं है, डॉक्टरों के ऊपर उनका भरोसा है। ये कहते नहीं डॉक्टरों के पास जाना है, पर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते तो क्या कहते हैं, आप जाओ दुआ कर दो। हालेलुया। तो हमें जो सांसें दी हैं और जीवित रखा है और खुशी खुशी उनके पास हम आए हैं, या दुख में आए थे या प्रॉब्लम में आए थे, वो आपकी हर प्रॉब्लम दुखों में आपके साथ रहेंगे और आपकी हर प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। तो आपकी जिंदगी में जो भी टेस्ट बनी हो वो आप दे सकते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर ने हमें एक और दिन हमारे जीवन में भी ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया, लेकिन मैंने बचपन में सिर्फ हिंदी चर्च अटेंड किया है। तो जब मैं मलयालम चर्च में आती थी तो मेरे को एकदम अकेला सा लगता था। चर्च बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ का जो गाना ये सब मैं एकदम दिल तो छोटा था, लेकिन मेरे को बड़ा अजीब लगता था। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ पे, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा को पता, वहीं पे परमेश्वर ने खेती सर्विस शुरू किया। इसमें परमेश्वर का बहुत ज्यादा गुणगान हो। आप सभी को भी मेरा प्यार सलाम। सबको जय मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ताली बजाएंगे दवाई के लिए। वो हिंदी चर्च में शुरू से जाती थी और वो जानती थी जब मलयालम चर्च में पहुंचते ना अकेलापन फील होता था। तो आज मुझे बहुत अच्छा, यहाँ पर मुझे भी अभी खुशी, आप लोगों कितने लोगों को खुशी महसूस हो रही है, कितने लोगों को यहाँ पर अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रही है। और मैं चाहता हूँ क्योंकि खुशियाँ जब आती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इस खुशी में इसीलिए हम लोग शामिल हुए ताकि आज वो खुशियाँ आप भी लेकर जाए। हालेलुया। तो और भी किसी की कोई गवाही है तो वो दे सकते हैं। जी आप सबों को जय मसीह की। हम लोग ध्यान करते हैं सबको जोहार हम लोग का भाषा में। मैं आप लोगों को धन्यवाद देते, ईश्वर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग यहाँ तक आ पहुँचेंगे, और जब हम आए अपने में बहुत डर और बहुत बेचैनी था कि हम इतना दूर आए थे, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपना पूरा परिवार को छोड़ के आए हैं, फिर भी ईश्वर से मेरा विनती है, दुआ था कि मेरा सारा रिपोर्ट ठीक निकले और हम अच्छे होके यहाँ से जा सके। ईश्वर को धन्यवाद देते। बहुत दर्द और बहुत तकलीफ था, पर अभी कुछ अच्छे हैं, इसी के लिए आप लोगों को धन्यवाद देते। हमेशा हमको दुआ में आप लोग याद रखिएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आंटी गवाही बड़ी बेचैनी थी
और इतनी दूर कभी यहाँ पर चेन्नई में, बेलूर में जा रहे हैं, तो इनको नहीं पता था यहाँ पे कैसा होगा, क्या होगा, कितनी दूर जा रहे हैं, 3 दिन का 4 दिन का सफर होता है और बड़ी थकान भी हो जाती है और बेचैनी भी। और हर एक तरीके से जब कोई एकदम प्रॉब्लम आती, बीमारी आती है, तो क्या होता है कि अब समझ में नहीं आता है। उसी टाइम पैसे की घटती होती है, उसी टाइम कोई साथ देने वाला नहीं होता है, उसी टाइम हमारे ऊपर चारों तरफ से लगता है रास्ते बंद है और कोई साथ देने वाला नहीं है। पर जब हम प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु से हमारा रिश्ता होता है, तो वो आपके रास्ते जहां से आपको दिखते नहीं, वहां से वो रास्ते बनाते हैं और वहां से आपको उम्मीद नहीं होती, वहां से लोगों को खड़ा करते हैं। तो आंटी जी यहाँ पर पिछले हफ्ते में भी बेनते को जो हीलिंग पीरियड था उसमें आई थी और परमेश्वर ने काफी बेहतर है अभी। और जब कुछ दिन पीरियड हुआ तो मैं विश्वास करता हूँ यहाँ से आप जाओगी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी और परमेश्वर आपको भला चंगा स्वास्थ्य करेगा पूरी दिन। हालेलुया, उनका धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते में आपने अभी पिछले बेनते को बहुत ही अद्भुत गवाहियां थी। इसी बिल्डिंग में एक सिस्टर थी, वो इंग्लिश में ट्रांसलेटर करती थी और हिंदी का काफी पुणे और मुंबई जगह जगह जाकर वो सेवकाई पास्टर जी के साथ करती है। अपनी चर्च में भी 8 सालों से प्रॉब्लम था उनको। यहाँ पर पूरे गर्दन में एक छोटा छोटा गाने ऐसे हो गए थे, उनमें से पानी निकलता था, बहुत प्रॉब्लम थी। और मैं वहाँ पर उनके यहीं पे बिल्डिंग में आया था, सतीश भाई ने मुझे बताया था, वो सिस्टर से बात हुआ, बातचीत होते होते और फिर तो बातचीत होने लगा ऐसे कि मुझे अगुवाई हुआ कि मैं प्रेयर करूं उनके लिए। प्रभु ने अगुवाई दिया, तो जब प्रेयर हुआ तो परमेश्वर का सामर्थ तो अद्भुत तरीके से वहाँ पे फिर गया और मुझे अंदर से महसूस कर लिया मैंने कि ये चंगी हो गए हैं। और उन्होंने भी वहाँ पर वो रोने लगी और प्रेयर उनके लिए जब हुआ और 1 हफ्ते बाद वो यहाँ से उनकी मम्मी और मोबाइल नंबर लेकर गए, तो उन्होंने जब वहाँ से जाकर वो फोटो भेजी वहाँ पर और वो सारे 8 साल का प्रॉब्लम खत्म हो चुका था। हालेलुया। तो परमेश्वर आप ये नहीं, आप जहाँ पे भी है, आपको जहां पे भी रखा गया, चाहे आपके प्रभु के दासों के साथ, चाहे जिस चर्च में जाते हैं, आप वहां पर बने रहिए, वहां से हटिए मत, आप उनके साथ वफादार बने रहिए, अगुओं के अधीनता में रहो और परमेश्वर के साथ वफादार रहो। एक टाइम आएगा आपको लग रहा है जिंदगी बढ़ नहीं रहा है, जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा है, समुद्र जब शांत होता है तो समझ जाओ बड़ा तूफान और बड़ी सुनामी आने वाली है इसके नाम में। हालेलुया। तो आपकी जिंदगी में जब कुछ ऐसा ही होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप बकरी नहीं हो, भेड़ हो। और भेड़ क्या करती है, जितना खाएगी उतना ही देखकर वो थोड़ा थोड़ा जितना आगे जाएगी उतना ही वो खाके उतना ही आगे बढ़ती है, उतना ही उसे मिलता जाता है। पर बकरी यहाँ खाएगी, वहां को भी देखेगी, चारों तरफ देखेगी। पर जितना आप धीरे धीरे चलोगे ना परमेश्वर के साथ हाथ के नीचे, उतना ही वो आपकी जिंदगी में काम करते चले जाएंगे और आपके रास्ते ओपन होते चले आएंगे और आप चकित होंगे कि ये कैसे हो सकता है। और ये आप समझ सकते हो, आप धन्यवाद दे सकते हो और आपकी जिंदगी को देखकर लोग भी कहते हैं कि जिंदगी में ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी में नहीं, फिर वो आपके पास आते हैं और परमेश्वर की अद्भुत तरीके से महिमा होती है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी किसी की कोई गवाही नहीं हो तो दे सकते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ आज सुबह का। आज सुबह में क्या हुआ, मैं आज बगल में रहता हूँ, वहाँ पे भी तो मैं वहाँ से मुझे निकलना 5 बजे उठना था, तो मैं रात में प्रेयर में था तो लेट में सोया, तो मैं अलार्म लगा के मोबाइल में सोया और आपको पता है क्या हुआ, वो अलार्म कब बजा मुझे नहीं पता चला। बस था 6:30 बजे का और वहाँ पर मैं उठा कितने बजे, 6:43 पर मैं वहाँ से उठा और मैंने कहा 6:30 बजे का बस चला गया होगा। मैं जल्दी रेडी होकर जैसे मैं कैंपस के गेट के बाहर निकला और वहाँ पे मेरा जानने वाला बाइक से मिल गया, उसने मुझे बाइक पे बैठाला, बस स्टैंड छोड़ा, देखा 7 बजे वो बस लेट थी, आज लेट थी, पर कभी नहीं लेट होती है। तो 6:30 बजे जाती है, वो 7 बजे आई है और मुझे तुरंत वहाँ लेकर आए, मैं टाइम से पहुंचा हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करते हैं और आप शांत रहिए, चुप रहिए, ये मत, क्योंकि शैतान आपको वो दिखाएगा, बीमारी दिखाएगा, प्रॉब्लम दिखाएगा, लेट दिखाएगा, घटी दिखाएगा, पर आप परमेश्वर कहता है आप वो देखो जो आप सोच समझ से बढ़कर आए। आप उन चीजों को देखो जो है नहीं बल्कि वो हैं, और वो परमेश्वर कर सकता है। फिर क्या करता है, वो बस को लेट हो गई, क्यों? क्योंकि एक अकेला प्रभु का बेटा वहां से आ रहा है और कितने भाई बहनों से मिलने के लिए, बात करने के लिए प्रभु के हमारे द्वारा। तो परमेश्वर कैसे अद्भुत तरीके से काम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और किसी की टेस्टमनी हो तो दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। और मैं पिछले संडे यहाँ चर्च में आई थी और मैं प्रार्थना, जब पास्टर बोले थे कि प्रार्थना निवेदन किसी का है तो आप लोग बोल सकते हैं, तो मैं प्रार्थना निवेदन रखी थी कि मुझे कोई भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। मैं वेट कर रही थी, हर समय कंटिन्यू वेट में लगी हूँ कि मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाए जल्द से जल्द। और
ये हुआ। उसके बाद मंडे को फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो मेरा अपॉइंटमेंट भी मिल गया और आज मतलब सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया है और 2 ट्रीटमेंट बाकी है जो अपॉइंटमेंट मिल चुका है, लेकिन हमको अपॉइंटमेंट लेने में हमको कोई भी परेशानी नहीं हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में कुछ कितना महान है। प्रभु का वचन कहता है वो दूर और पास दोनों का परमेश्वर, निकट का परमेश्वर है। आप ये मत सोचो बेलूर में जाएंगे परमेश्वर नहीं मिलेगा, बस बेलूर में वो पहले से आपके लिए हर एक चीज को तैयार कर रखा है। आपको लग रहा है आपको वहां नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे, आपको लग रहा है, पर क्या हुआ वहां पर परमेश्वर सारे रास्ते ओपन किया, आप मिल पाएंगे। और मैं विश्वास करता है और भी अद्भुत तरीके आपकी जिंदगी में काम करेंगे, क्योंकि उनकी योजना अलग है और उनका सोचना बहुत अलग है। पर उनका जो सोचना है, उनकी जो इच्छा है और उनका जो इच्छा के अनुसार हमें चलना है, उनके ऊपर जो विश्वास है वो बनाए रखिए। प्रभु आप जैसा चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में वैसा होने दीजिए और फिर वो आपकी लाइफ को बदलते चले जाएंगे और काम करते चले जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और पिछली बार भी काफी गवाहियां थी, प्रभु ने जीवन में काम किया। ये हिंदी चर्च इसलिए चालू हुआ है कि परमेश्वर चाहते हैं, उनकी इच्छा यहाँ पर कि लोग आए, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं बीमारी में, मुसीबत में, कैंसर है लोग, उनको लोगों को नहीं जानते हैं परमेश्वर को, और वो नहीं जानते हैं कि कोई परमेश्वर है, सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसको हम पास जाएंगे और वो हमें छुटकारा देगा। उनको कुछ लोगों को नहीं पता, जिसको पता है पर उनका अभी विश्वास इतना नहीं था। तो विश्वास था तो इतना क्या कर रहे हैं, फिर वो बार बार शक भी कर रहे थे। बहुत सी चीजें आ जाती है जिंदगी में, पर हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना है, पूरा विश्वास करके रखना है, क्योंकि बाइबल में हर एक चीज के बारे में लिखा है। चाहे कितना कितना लोगों की जिंदगी में कष्ट आए, प्रॉब्लम आए, आयुब जैसे भी लोग रहे हैं, और उन्होंने परमेश्वर की निंदा नहीं की, उन्होंने विश्वास किया। उसी तरीके से हम जब प्रभु के पास आए तो आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, और वो भरोसे को टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। ये लोग वो वचन कहता है वो मनुष्य नहीं झूठ बोले, ना आदमी इच्छाओं को बदले। आपका भरोसा मनुष्य तो तोड़ सकते हैं, विश्वास को तोड़ सकते हैं। आपका भाई आपके साथ भले ही मुसीबत में ना खड़े हो, आपका परिवार ना खड़ा हो, पर परमेश्वर आपके साथ हर घड़ी हर समय को आपके साथ खड़े हैं और वो साथ देंगे आपका। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आगे अभी हम वचनों की ओर जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह आज थोड़ा कम है और अभी मुझे जाना भी है, एक और हिंदी सर्विस है और उसमें भी मुझे टाइम से थोड़ा सा, क्योंकि बाकी आज पहला दिन था, बाकी अगली बार से सब अच्छे तरीके से बेहतर तरीके होगा। तो मैं अभी विश्वास करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को, और आपने अच्छे आराधना में बड़े आनंदित तरीके से परमेश्वर की महिमा को की। और जब हम महिमा करते हैं, जब उसे महिमा देते हैं, वचन कहता है वो महिमा और बढ़ा देता है। तो मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर उसने अपनी महिमा के लोगों पर उठेल दिया है और फिर वो काम करेंगे। हालेलुया। तो अभी प्रेज़ लॉर्ड, एक बार प्रेज़ लॉर्ड और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम अर्पित है और मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ, पर परमेश्वर मुझे एक छोटे से गांव से यहाँ पर लेकर आया है और मुझे नहीं पता था मैं चेन्नई में आकर कभी सेवा करूँ। मैं छोटे से गांव का हूँ और वहाँ पर मैं एक कमरे में जाकर अपना प्रेयर करता था। तो मुसीबत इतनी एक चाहत थी, कुछ नहीं मांगता, कभी नहीं कहता कि मुझे अमीर बना दे, कभी नहीं कहता मुझे गरीब बना दे। बस मैं इतना जानता हूँ मुझे इतना देना ताकि कोई दूसरा मुझे देखकर ये ना कह पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, और मुझे देखकर कोई भी कहीं छुपने ना पाए। मुझे देखकर लोग घर से निकलकर बाहर आ जाए और उनकी जिंदगी में उनके चेहरे पर वो खुशी होनी चाहिए जो मुझे देखकर आ जाए, और वो आपको महिमा मिले कि मुझ में मैं नहीं, मसीह दिखना चाहिए, और वो आप में प्रभु और आपको महिमा मिले, तब वो जिंदगियों को बदलते हैं। हालेलुया। तो अभी हम निकालेंगे भजन संहिता 23। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने पहले विश्वास किया है, भरोसा किया है? भजन संहिता 23। आप लोगों में कितने लोगों ने पहले सबसे पहले विश्वास में आए हैं, उसके बाद आपका घर आया है, या घर में कोई विश्वास में था उसके बाद आप आए? कितने लोग? क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे विश्वास से तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। तो कितने लोगों ने पहले परमेश्वर पे विश्वास किया है? और या आपकी मम्मी ने, पापा ने, उनके विश्वास से आए, या आप जन्म से ही जब आप यहाँ पे इस धरती पे आपका जो जन्म हुआ तो उसके बाद से ही आपके माँ बाप ही परमेश्वर में थे, पहले थे? क्योंकि अब इस वचन के द्वारा परमेश्वर जरूर आप लोगों से बात करेंगे। लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर? क्या कह रहा है यहाँ पर? दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है।
और मुझे कुछ घटी ना होगी, और वह मुझे हरी चराइयों में बिठाता है। हालेलुया। कहाँ पहले क्या कर रहा है? मेरा, वो कह पा रहा है मेरा है। या कितने लोग कहते हैं परमेश्वर मेरा है? या आप लोग नए आए हैं जिस परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो आज आप अपना रिश्ता ठीक करेंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा और उनसे आप अपना रिश्ता बनाइए। क्योंकि जब वो आपकी जिंदगी में होते हैं, जब तक एक बात भाई आपको अगर कोई अगर जानता है, आपको जब दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती, परेशानी आती है, तो आप क्या करते हैं? जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं, उनके साथ आपका एक रिश्ता है और वो आपकी हेल्प करते हैं। इसी रीति से क्या है कि दाऊद कह रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। पहले वो किसका है? यहोवा मेरा चरवाहा है। पहले वो मेरे मम्मी का नहीं, पापा का नहीं, घर का नहीं, परिवार का नहीं, पहले वो किसका है? अगर आपको चुना है आपके परिवार में, तो पहले किसका है? आपका रिश्ता उनसे ठीक होना चाहिए और आपके विश्वास से वो पूरे घराने को चेंज करते चले जाएंगे। हालेलुया। पहले घर में किसको बुलाया? चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपका पापा हो, कोई भी हो, जिनका रिश्ता आपको लग रहा है टूटा हुआ था। क्या हम आज कह पाते हैं परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा? पहले क्या होना चाहिए? यहोवा मेरा है। कितने लोग आज कह पाते हैं? क्योंकि आज क्या है, लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। वो बोलते थे प्रभु यीशु मसीह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर वे जिंदगी में आज पुत्र के सारी बातें, दिक्कतें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। पर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप परमेश्वर के पास जाते हैं, चर्च भी आ रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, पर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ है। इसीलिए आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, और आपको प्रॉब्लम, परेशानियां और दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको आती रहती है, क्योंकि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा हुआ था परमेश्वर से। क्योंकि यहाँ पे लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो पहले क्या करना चाहिए? आपको अपना रिश्ता परमेश्वर ठीक करना है। क्योंकि आज हम लोग उनका ओठों तो आदर करते हैं, पर हमारा दिल नहीं लगा हुआ है, मन नहीं लगा। शादी हो गए, फिल्मी गानों पे डांस कर लिया, संसारिक लोगों के बीच में फंस गए, उनके सामने प्रेस लॉर्ड बोलना भी छोड़ दिया, उनके सामने हम वो उनकी तरह हो गए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम मोबाइल में, टिकटॉक में लगे हुए हैं, सारा चीज लगे हुए हैं। आज हम टाकीज में जा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। आज हम सारे को संसारिक दोस्तों को लेकर सब घूम रहे हैं और हम कह रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, कोई प्रॉब्लम ना होगी। ये वचन इतना सामर्थ्य है, अगर इसी वचन को आपने इसको पढ़कर अपने परिवार में, अपनी लाइफ में आपने जीवित कर लिया, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी को सेम नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपका रिश्ता जो है उनके साथ ठीक नहीं है। आपको क्या करना है? पहले उनसे रिश्ता ठीक कीजिए जहां कहीं टूटा है। क्योंकि दिक्कतें और प्रॉब्लम, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कहीं ना कुछ बातें इस जिंदगी में आ जाती है। ये नहीं है कि हम अगर कहीं चले गए कि कभी कुछ चीजें हो जाती है जिंदगी में, पर उनसे हमें उन्हीं चीजों में फंसे नहीं रहना है। हमें तुरंत परमेश्वर के पास आना, क्योंकि प्रभु का आत्मा है, व्याकुल कर देता है, बेचैन कर देता है। और जब आपको बेचैनी हो रही है, उस बात के लिए ज्यादा ध्यान जा रहा है, तो उन कामों को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते उन चीजों में जाए। क्योंकि आपके लिए जो रखा है वो खुशी सिनेमा हॉल में नहीं है, वो खुशी टिकटॉक में नहीं मिलेगी, वो खुशी और संसारिक चीजों में नहीं मिलेगी। वो संसारिक गानों पे डांस करके थोड़ी देर हम मनुष्यों की नजर में तो अच्छे बन सकते हैं, पर खुदा की नजर में फिर हम वो वाली बात नहीं रह जाती है। खुदा फिर इस चीज से निराश हो जाता है, और वो निराश होता है, कहीं ना कहीं शैतान को मौका मिलता है और वो छोटी सी जगह बनाता है, और छोटी जगह बना के फिर वो कुछ बड़ा काम करने की कोशिश करता है। फिर भी परमेश्वर इतना दयालु है, वो क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, फिर भी हम टूटे पिछले मन से आते हैं, चाहे बीमारी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, वो हमारी जिंदगी में जब हम उनके पास आते हैं और उन्हें पुकारते हैं सच्चे हृदय से, और वो टूटे हृदय को, टूटे मन को देखते हैं और वो हमारी दुआएं को सुनते हैं और हमारी जिंदगी में काम करते हैं। पर उनसे रिश्ता बना के रखिए। उन चीजों में जो परमेश्वर चाहते, जो भी परमेश्वर के खिलाफ है, जो बातें, जो चीजें वचन से अलग है, उन बातों को मत कीजिए। अभी यहाँ से तरह तरह के भाई और बहन सभी लोग आप लोग बैठे हुए हैं। किसी को अच्छी प्रार्थना करना आता होगा, किसी को अच्छा पढ़ना आता होगा, किसी को तरह तरह के अच्छे काम है, सब कुछ चीजें है, ठीक है, अच्छा टैलेंट होगा बहुत से लोगों में, सब कुछ है। पर क्या है, हम दूसरे का जब मसीह मानते हैं तो हम सब एक अंग हैं, परमेश्वर हमारा सिर है। अगर पैर में अगर दिक्कत है तो ये हाथ से नहीं कह सकते कि हाथ की भाई तेरे पैर में तू देख ले अपना, ऐसा नहीं कह सकते। हम क्या करते हैं, जगह जगह से अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग यहाँ से स्टेट से बैठे हुए हैं, हम प्रेम की डोरी में एक साथ बंध तो सकते हैं, प्रेम की डोरी में बंध तो सकते हैं एक साथ। हालेलुया। तो यहोवा यहाँ पर क्या है, आपको रिश्ता वहां पर ठीक करना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी चराइयों में बिठाता है। अगर देखिए आपका रिश्ता उनसे ठीक है
आपका रिश्ता उनसे ठीक है और जिंदगी में आपके अगर परमेश्वर है तो आपको क्या है, आपकी सूखी जमीन भी जहाँ पे होगी वो भी क्या हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। आप क्या करते हैं, जब शाम को कभी आपका घूमने का मन होता है, दिल होता है, तो आप क्या करते हैं, कहते हैं चलो भाई पार्क में जाएंगे। कभी धूप में गए हो पार्क में बैठने के लिए, धूप में जाते हैं क्या, गर्मी पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, बारिश हो रहा है, कभी चले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर यहाँ कह रहा है हरी हरी चराइयों में बिठाता है, पार्क में हरा हरा सब कुछ होता है और एक टाइम का इंतजार करते हैं, ठंडा होता है, मौसम ठंडा है और वहां पर हम कुछ देर बैठकर अपना वहां पर जो भी एंजॉय करते हैं, बैठकर थोड़ा सुकून मिलता है लोगों को, वहां पर जाकर कुछ लोगों को सोचते हैं। पर सच्चा सुकून तो परमेश्वर के पास ही है। अगर जिंदगी में आपकी सूखा पड़ा है, अब भी अगर बीमारी है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो जब वो आपकी जिंदगी में आएंगे तो हर एक सूखापन, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक अशांति को आपकी जिंदगी से खत्म कर देंगे और पूरी रीति से आप क्या करेंगे, शांति पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब पतरस के पास वहां पर पहुंचे, जब यीशु मसीह पतरस की जिंदगी में आते हैं तो पतरस एक जगह जाल डाल रहा था मछली पकड़ने के लिए, और जैसे उसने रात भर मेहनत की और कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा, कुछ मछुआरे और उसके साथ थे वो भी सब थक गए और रात के जगे हुए हैं, अब उनकी कोई उम्मीद नहीं है, सारी ताकत, सारा बल और सारी मेहनत कर ली है, अब उन्हें कुछ भी वहां पर फल नहीं मिल पाया है। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसकी नाव पे सवार होते हैं और कहते हैं जाल डाल। तो जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होते हैं तो फिर क्या है, वो नाव भी भरने लगती है, वो जाल भी फटने लगते हैं। हालेलुया। वो क्या होता है, वो सूखी जमीन भी हरी हरी हो जाती है। वो ऐसी जगह जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आते हैं और जब आप उन्हें आने का पूरी तरीके से अपने हृदय को खोलते हैं, अपने दिल के द्वार खोलते हैं, हर एक कड़वाहट को, हर एक नामाफी बातों को, हर एक गलत बातों, गलत चीजों, गलत स्वभाव, अब भी कड़वाहटें रखी हैं, अब भी जलन आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, अपने आप को लोगों के सामने बड़ा दिखा रहे हो, सब बातें ये चल रही हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अब भी काम नहीं कर पाएंगे और वो सूखापन आज भी था। इसलिए अगर वो आपकी जिंदगी में आएंगे, इन सब बातों को दूर कीजिए और वो आपकी जिंदगी में क्या करेंगे, हरा भरा करेंगे और आपकी सब बीमारियों से, सब प्रॉब्लम से, सब परेशानियों से आपको क्या करेंगे, वो पूरी रीति से छुटकारा देंगे। और जब वो छुटकारा देते हैं तो वो छुटकारा आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा का होता है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं करता आज चंगा कर दिया कल फिर वो और भी प्रॉब्लम आगे, ऐसा नहीं है। ये मसीह जीवन है, इसमें ये नहीं कह सकते प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आती हैं, पर वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी संसारिक लोग हैं जो परमेश्वर तो नहीं जानते, उनकी जिंदगी में दिक्कतें आती, दुख आते, प्रॉब्लम आते, वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। कोई अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है, कोई घर से भाग जाता है, कोई नशे पत्ते करने लगता है, कोई गलत काम करने लगता है, कोई गलत तरीके से बिजनेस करने लगता है और उनको लगता है ऐसे शांति मिल रही है, ऐसे ही चलेगा और वो अपनी किस्मत को समझ लेते हैं। पर किस्मत नहीं है, यहाँ सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब वो आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपकी क्या करते हैं, वो सूखी जमीन भी हरी भरी हो जाती है और वो आपको सूखी जमीन में नहीं बैठाएंगे। अगर वो आपकी जिंदगी में है और आपके पास आए हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ सूखापन नहीं रहेगा। आपको अगर घटी है वो भरपूरी में बदलेगा, आपकी बीमारियां हैं तो वो चंगाई में बदलेगा, आपके श्राप बंधन है वो तोड़ देगा और उन्हें आशीषों में बदल देगा। आप अगर आंसुओं में हो तो वो टूटे मन की आंसुओं की सुधि लेगा। वो आपके दिन भर मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और एक एक आंसुओं को कुप्पी में भरता है। हालेलुया। एक एक आंसुओं को क्या करता है, वो कुप्पी में भरता है। हालेलुया। और जब आपका उनके साथ रिश्ता होता है, हर पल हर समय वो आपका साथ देंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने गांव से 30 किलोमीटर वहां पे दूर था चर्च, एक घर में ऐसे हॉल बना हुआ था, वहां लगता था। मैं घर से निकलता था, आधा किलोमीटर पैदल जाता था, फिर वहां से जाकर ई रिक्शा चलते हैं वहां पर, वो ई रिक्शा चलते थे, उस पर देकर 3-4 किलोमीटर वो रिक्शा से बैठकर जाता था। उसके बाद एक ऑटो लेता था, ऑटो लेने के बाद दूसरा ऑटो लेकर और फिर वहां से जाकर आधा किलोमीटर फिर पैदल चलकर तब मैं चर्च जाकर और शाम को मैं लौटता था संडे को। हालेलुया। क्या करता था, शाम को वहां से लौटता था। एक दिन मैं जा रहा था चर्च में और मैं जैसे ही पहुंचा वहां पर तो मुझे एक हल्की धीमी से एक आवाज सुनाई दी। मैं जिस ऑटो में बैठने वाला था उस बैठने के लिए जाता तो धीमी सी आवाज मुझे सुनाई दी कि इस ऑटो में नहीं बैठना। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा भय हो, पर पवित्र आत्मा की प्रभु की तरफ से जो आवाज होती है तो वो बिल्कुल क्लियर और साफ होती है और धीमी आवाज होगी। वो आपको बार बार फोर्स नहीं करेगा, बिल्कुल धीमी और साफ। चाहे आपका कितनी वहां पर आवाज हो, चाहे रोड के ऊपर कहीं पे भी हो, वो आपकी आवाज कान में पूरी तरीके से आपको समझ में आएगी और परमेश्वर की आवाज होती है। तो मैं क्या किया, उस ऑटो को जैसे उसने रोक दिया था, मैं उस पर नहीं बैठा, पर मैं पीछे ऑटो में, मैं उसी ऑटो में दूसरे पे बैठ गया। वो ऑटो आगे जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ कि प्रभु तेरा धन्यवाद
मुझे नहीं पता इस ऑटो में क्या होने वाला है, क्योंकि आपने मुझे क्यों रोक दिया मुझे समझ में नहीं आया है। कुछ तो वहां पे ऐसा था जो आपने मुझे रोका है। तो मैं चाहता हूँ प्रभु इस ऑटो में जितने भी लोग बैठे, खुद ड्राइवर और खुद इस ऑटो में कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। हो सकता है उसने नया ऑटो लेके, क्योंकि नया ही था, कुछ दिन पहले उसने निकाला, किस्त चल रही हो, क्या प्रॉब्लम हो सकता है ऑटो में, कुछ भी हो सकता है, आग लग जाए या कहीं भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी उनके हो सकता है ऑटो में, या कोई वहां पे ऑटो में बैठा उनको जिंदगी में कोई दुख परेशानी कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो तो खुशी खुशी कहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर पीछे प्रेयर कर रहा हूँ और क्या हुआ, जाते जाते ऑटो मेरा थोड़ा पीछे ऑटो और वो थोड़ा आगे चल रहा है, और जाते जाते एकदम उसका टायर फटा, उसका टायर फट गया, और फटने के बाद एकदम वो ऑटो पूरा पलट गया, और जितने भी लोग उसमें बैठे हुए थे उनको एक खरोच तक नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, अगर मैं उसी ऑटो में बैठा होता तो क्या करता, मैं सिर्फ बस ध्यान यही लगा कि जल्दी पहुंच जाऊं, मेरा इतना ध्यान नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे बेचैन किया, और क्या किया, वहाँ प्रेयर चल रही, उन सबको परमेश्वर ने, उस ड्राइवर को, और वो टायर फट गया, फिलहाल ऑटो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में होते हैं, हर पल हर समय वो आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, गलत मार्ग निकालेंगे, और विपत्ति और प्रॉब्लम वो डेरे के निकट नहीं आने देते, वचन कहता है, तो वो नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो उसमें आप पढ़ने नहीं देगा, अगर पढ़ भी गए तो आपको निकालेगा, और आप धीरज धरना पड़ेगा, उसके हाथ के नीचे बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं सूखी जमीन में वो लेके नहीं जाता है, हरी भरी चराइयों में बिठाता है। जैसे काना नगर में पहुंचते क्या होता है, वहां पर दागरस घट गया था, और वहां पर सूखा बना गया, दागरस घट गया, अब तो बेइज्जती होगी, शर्मिंदगी आएगी, बहुत प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती थी, पर वहां पे प्रभु ने, वहां पर कौन है, यीशु मसीह मौजूद है, और जब वो वहां पे मौजूद है तो उसने पानी को दागरस में बदल दिया, और वो भी भरपूरी से दिया। हालेलुया। जब वो जहाँ पे होते हैं तो वहाँ सूखी जमीन भी होती है, घटी होती है, तो भरपूरी में बदलती है, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में फिर अद्भुत तरीके से वो काम करते हैं। हालेलुया। झोलियां छोटी पड़ जाती है पर उनकी आशीष नहीं रुकती है। बाइबल कहती है, एलिशा के टाइम में विधवा को आपने देखा होगा, बर्तन कम पड़ गए थे, तेल नहीं कम रुका था वहां से, आशीष नहीं रुकती है परमेश्वर की। आप मना कर दोगे अब नहीं, वो वहां से रुकने वाला नहीं है, वो तो उठेलने के लिए तैयार है। क्या आप वो आदर का बर्तन बनना चाहते हो जिसे वो भरना चाहता है? क्या आप तैयार होना चाहते हो, उनके ऊपर विश्वास करना चाहते हो, पूरी रीति से आप जो भी आपकी जिंदगी का था वो सब चीजों को आप साइड में रखकर और उन्हें अपना पूरा उन्हें काम करने का मौका दें, और विश्वास रखें, क्योंकि जीवित परमेश्वर वो है, और बड़ी भयानक और अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। आप चकित हो जाओगे और आपकी जिंदगी में जब वो काम करेगा। हालेलुया। आपने देखा 2 मछली और 5 रोटी, जहाँ यीशु मसीह मौजूद थे, 5000 लोगों को खिला दिया। वहां पे क्या था, सूखी जमीन थी, कुछ भी समझ नहीं, चेले करे इतने लोग कैसे खिलाएंगे, क्या होगा, यहाँ बड़ी बातें हो रहे होंगे। वो भी 3 दिन से लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, हजारों के हिसाब से लोग हैं वहां पर, और क्या हो रहा है, यीशु मसीह मौजूद है, 2 मछली और 5 रोटी थे, उन्होंने भरपूरी में बदल दिया। ऐसे ही वो जब आपकी जिंदगी में आते हैं, आपका जब रिश्ता उनसे अच्छा होता है। अभी आप सोचिए, आप भीड़ में कहीं खड़े हो इधर, ठीक है, और भीड़ में खड़े हो, 100 लोगों के बीच में खड़े हुए, अगर मैं आपको जानता हूँ, मैं यहाँ से आवाज अगर दूंगा और आप अगर मेरी आवाज मुझे वहां पे आवाज सुनकर वो भीड़ में और कोई मुझे आवाज नहीं सुनेगा ना, अगर सुनेंगे भी तो इग्नोर कर देंगे, पर आप मेरी आवाज को सुनोगे, देखोगे और मेरे पास आओगे और मुझसे पूछोगे क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मेरा रिश्ता आपके साथ कुछ भाई और कुछ दोस्त का है, तभी आप मेरी उस भीड़ में भी आवाज सुन सकते हैं। ऐसे ही परमेश्वर है, जब भी आप कहीं पे, कितनी भीड़ में कहीं पे भी हो, जब आपका रिश्ता उनके साथ होता है तो परमेश्वर प्रभु आपकी जिंदगी में वो कार्य करते हैं। हालेलुया। वो हर एक सूखी जमीन को हरा भरा कर देते हैं, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे परेशानियां हो, वो आपकी जिंदगी से सब खत्म करेंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी में जब हमने प्रभु को जाना 2020 में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, 2020 में मैंने जाना, पर मैंने पूरी तरीके से मैं जब जान गया, कुछ ही दिन में परमेश्वर के पीछे जब मैं जान गया कि यही वो सच्चा परमेश्वर है, और मैंने कहा अब मैं इस जगह का मैं जान गया ये परमेश्वर है, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उनकी ओर खोज करने लगा और भूख प्यास दिखाने लगा, और उनके लिए मैं भूखा प्यासा हो गया, और वो टाइम पर नृत्य करते चले गए। और मैंने देखा, जब मुझे एक वचन एक बार मिला थिमोथियस में, उसमें लिखा जो सेवा करने वाला हो वो पहले क्या करे, अपने घर का अच्छा प्रतिबंध करने वाला हो, पहले वो घर को कंट्रोल में लेकर आए, पहले घर बदले। तो हमारे घर में तो बड़ी प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़े थे, और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और लोग हम पे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में तो खुद तुम बोलते हो ऐसा, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर शांति देगा, सब देगा, सब कुछ होगा, ठीक होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम चली हो जाएगी। तो लोग हम पे बोलते थे तुम्हारा घर तो खुद नहीं चेंज हो रहा है,
तो मैंने कहा प्रभु ये वचन जब मिला, मैंने कहा प्रभु यहाँ पे तो ये लिखा है, अब आप पहले मेरे घर को चेंज कीजिए ताकि मैं दूसरे को बताने के लिए जाऊं, तो ताकि मैं ठोकर का कारण ना बनूं बल्कि उनके लिए आशीष का कारण बनूं। हालेलुया। और जब क्या हुआ, परमेश्वर ने फिर मैं प्रार्थना करना चालू किया तो पहले क्या किया, घर को बदला, लड़ाई झगड़े खत्म हुए, सब भाई एक हुए, भाइयों ने बपतिस्मा लिया, बहन ने बपतिस्मा लिया और भाभी ने बपतिस्मा लिया और फिर सबने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उन पे विश्वास किया। पहले कौन चेंज हुआ, घर। और फिर मैं उनको खुशी खुशी बताने जाता तो वो सब बात सुनने लगे और फिर उन लोगों को भी परमेश्वर बदलने लगा और वो भी जान गए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो आपकी जिंदगी में आते, वो आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत तरीके, आप ये मत सोचिए आप यहाँ पर अगर कोई लेकर आए अपने पास, उसने बुलाया है तो बड़ी कुछ योजना है, बड़ी कुछ योजना के तहत आपको बुलाया और वो किस टाइम पर कहां पे वो पूरा करे कोई पता नहीं है। हालेलुया। वो एक टाइम आएगा, परमेश्वर जरूर से आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। तो आपका जहां पे उसके साथ रिश्ता नहीं ठीक है, और जो लोग आप में से अगर नए हैं, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर यीशु मसीह को, तो आप उनके साथ एक रिश्ता ठीक कीजिए, उनको पुकारिए और वो सुनते हैं। उसने कहा जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, उन पे उनकी दया आ जाती है। और जब उनकी दया आती है, जब उनका छुटकारा आता है, तो हर तरीके से वो आपको सब प्रकार की प्रॉब्लम, बीमारी, परेशानियों से वो आपको बिल्कुल आजाद करेगा। और फिर उनके पीछे चलिए, और जब उनके पीछे आप चलेंगे तो वो समय समय टाइम पर आपकी हर एक साथ, आपके समय पर, हर प्रॉब्लम में, हर एक जरूरतों के टाइम में, हर एक घटी के टाइम में, हर एक आंसुओं के टाइम में, हर शर्मिंदगी के टाइम, जो कुछ भी था उस समय वो आपके साथ खड़े होंगे। पर आपको बना रहना पड़ेगा। और वो यही नहीं चाहते कि इस पृथ्वी पे खुशी खुशी आप जीवन बिताएं, वो ये चाहते कि हमेशा हमेशा उनके साथ आप स्वर्ग में रहने पाएं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो इतना प्रेम करते हैं। शुरुआत जहां से होती है, पृथ्वी देखो शुरुआत कहां की, मनुष्य को बनाकर उनकी संगति के लिए। वो खुद आते थे आदम से संगति करने के लिए। और प्रकाशित वाक्य लास्ट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर नए यरूशलेम को धरती पर उतार दिया। क्या कर रहा है, नए यरूशलेम को धरती पर उतार दिया। और परमेश्वर क्या कर रहा है, मनुष्यों के बीच में डेरा कर रहा है और वो मनुष्यों के बीच में रहेगा। हालेलुया। वो इतना उत्साहित है आपके साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। वो इतना प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो क्या कर, इतना प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आगे कि वह सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है और वह मेरे जी में जी आता है। यहाँ पर क्या वचन कह रहा है कि वो सुखदायी जल के झरने के पास। ये झरना कौन सा है, ये झरना वो नहीं है जो वहां पे कहीं अगर भेड़ अगर चली जाए, झरना ऊपर से जो गिरता है, पहाड़ों के बीच में कहीं झरना बह रहा है, ठीक है, वहां पे अगर भैंस चली गई, वहां खड़ी हुई, कहीं पहाड़ गई इधर उधर, कहीं कुछ भी चट्टान गिर गई या पैर इधर उधर हो गया, तो भेड़ हो सकता है गिर के पानी में बह सकती है, दूर जा सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ऐसी जगह पे सुखदायी जल के झरने के पास परमेश्वर जब भी आपको लेके चलते हैं, हमें जब वो यहाँ पर लेकर आया तो पूरे आनंद के साथ, पूरी शांति के साथ, पूरा मुझे लग रहा था कि मैं तो लेट हो गया हूँ, पर वो मेरा भरोसा किस पे, उन पे, वो हमें पूरी शांति के साथ टाइमली यहाँ पर मुझे पहुंचा दिया। हालेलुया। तो जब वो आपकी जिंदगी में होते हैं तो वो चाहे सुखदायी जल के झरना कौन सा है, आपने देखा कुछ कुछ जगहों से जमीन के नीचे से पानी निकलता है ताकि वहां पर जाकर आप अच्छे रणनीति से पी सकें, आप तृप्त हो सकें। और आपकी जिंदगी में वो दिक्कत प्रॉब्लम जहां पे है, अगर आपको प्रॉब्लम में रहने, बीमारियों में अगर रहने देता, घटियों में रहने देता, परेशानियों में ही रहने देता, लड़ाई झगड़ों में और पुरानी जिंदगी में अगर आपको रहने देता, तो वो आपको क्या कर, आपको लेकर नहीं आता, बुलाता नहीं आपको, उन्हीं में फिर आप बने रहते। पर आपको इसीलिए बुला के लेकर आया और फिर से नहीं, वो आपको नहीं लेके जाएगा, वो तो आपका चुनाव हुआ है, क्योंकि आपको खुद पता है क्या सही है और क्या गलत है। ये परमेश्वर में आकर यीशु मसीह को जानकर आपको अच्छे तरीके से आप चाहते हैं, प्रभु के दास लोग आपको बताते हैं और किस तरीके से आपको चलना है और किस तरीके से आपको आशीष लेनी है, किस तरीके से आपकी जिंदगी में काम होगा। और जब आप उनके पास आएंगे और आप उन्हीं के अनुसार चलेंगे, आप ये मत चिंता कीजिए वो परेशानी बड़ी थी, वो दुख बड़ा था, वो प्रॉब्लम बड़ी थी, प्रॉब्लम कुछ भी बड़ा नहीं था, परमेश्वर बड़ा है। उनके लिए चुटकियों में काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अद्भुत तरीके, पलक झपकते ही काम वो अद्भुत तरीके से होता है। हालेलुया। तो वो आपकी जिंदगी में इस तरीके से अद्भुत तरीके से काम करना चाहते हैं, तो वो उस झरने के पास लेकर के चलते हैं जहाँ भेड़ को कोई दिक्कत ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, परेशानी में ना पड़ जाए, विपत्ति ना आ जाए, कहीं गिर ना जाए, टूट फूट ना हो जाए। पर वो क्या कर रहे हैं, जहाँ नीचे सुखदायी जल का झरना, जो एक जगह नीचे से पानी निकलता है, वहां पे ले जाते हैं ताकि भेड़ वहां पर जाके खुशी खुशी पी सके और उसकी जिंदगी में अच्छे से वहां जाकर और वापसी रहे और उनके साथ वहां पर टाइम बिता सके, बैठ सके। हालेलुया। तो वो ऐसा चाहते हैं आपकी जिंदगी में।
तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का जहां कहीं आपका रिश्ता टूटा है, क्योंकि आगे लिखा है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से न डरना, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। अगर वो हमारे साथ रहता है, कैसे रहेगा? जब आपका रिश्ता उसके साथ ठीक होगा तभी तो ठीक रहेगा, तभी तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। अभी आपका दोस्त है, आपको लेकर आपको कोई बोले कि मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ चेन्नई, कुछ काम है, और वो जिस काम के लिए आपको लेकर जा रहा है, अगर उसके मुताबिक अगर वहां पे उसके साथ नहीं जाएंगे, उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो आपके साथ नहीं जाएगा फिर, क्योंकि आप अगर उनके साथ जा रहे हो तो आपको क्या करना है? उनके मुताबिक चलना भी पड़ेगा, उनके मुताबिक करना पड़ेगा। वो जिस जगह गाड़ी रोकेंगे उसी जगह आपको चाय पीनी पड़ेगी, उसी जगह जिस जगह होटल खाना रोकेंगे खाने के लिए वहीं पे खाना पड़ेगा। जिस टाइम वो आपको लिस्ट देंगे वहां पे आपकी मन मुताबिक नहीं चल सकती फिर। और हम लोग क्या करते हैं? अपनी मन मुताबिक करते हैं, और इसीलिए जिंदगी में और हम कहते हैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। और फिर हानि और परेशानी आपके साथ में होती है, प्रॉब्लम खड़ी होती है घर के निकट, और आप कहते हैं अगर परमेश्वर साथ है तो ये हानि और ये परेशानी ये दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उनकी इच्छा के अनुसार चल नहीं रहे हो, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो काम करने का। अगर उन्हें मौका दोगे काम करने का तो आपकी जिंदगी में वो काम करेंगे, और वो कार्य करेंगे तो पूरी रणनीति छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। वो घर को परिवार सब बदलता है। आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जब परमेश्वर की दया से मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं सीएमसी पहले आकर यहाँ पर मैं जाता हूँ सुसमाचार के लिए, पहले हर एक लोगों को मैं पूरे याद के साथ सुनाता हूँ, पूरे ये उनका जो उन्होंने जो काम दिया है खुशी खुशी से, कोई डर बिना भय के साथ एक एक लोगों को वहां पर प्रभु के बारे में बताना, और फिर बताकर मैं यहाँ 2 घंटे वहां पर करके 2 दिन जाकर, और फिर तीसरे दिन मीटिंग होती है, संडे पे चलने लगी है। अब अगले हफ्ते में किस दिन आना मुझे नहीं पता अभी, पर वो समय पे पास्टर जी से बात होगी तो उस समय आना पड़ेगा। पर जो काम है, क्योंकि आज हम प्रभु के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आज हम उनका एक कदम बढ़ाने नहीं चाहते हैं, हम उनके निकट जाएंगे तभी तो वो हमारे निकट आएंगे। क्योंकि आज हम क्या करें, समस्या आई, प्रॉब्लम आई, भाई को फोन कर लिया, दोस्त को फोन कर लिया, रिश्तेदारों को फोन कर लिया, हर एक को फोन कर लिया, और क्या करते हैं? वो समस्या है, वो प्रॉब्लम को नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? वो छुटकारा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिस जगह आप दुख में है, प्रॉब्लम है, सबसे पहले भाई पे घुटने टेक दीजिए। और वो कहता है संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है, वो बड़े आराम से मिल जाएगा। पर आप परिश्रम कर रहे हैं, लोगों को फोन कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, लोगों को बाइक से भेज रहे हैं, वहां मिल नहीं रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं तो आपका काम नहीं कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आपका दुख खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, और जब आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तब काम नहीं होता है। बस संपूर्ण मन से उसको काम करने दीजिए, अपनी समझ का सहारा ना लें, बस संपूर्ण मन से उस पर विश्वास रखें और उसे काम करने का पूरा मौका दीजिए। चाहे वो बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम है, वो खड़ी नहीं रह पाएगी आपकी जिंदगी में। क्योंकि जब वो खड़ा होगा तो कोई नहीं खड़ा रह सकता है। हालेलुया। ना कोई बीमारी, ना कोई शैतान, क्योंकि जब वो आवाज, जब वो ऑर्डर चलाता है ना, तो शैतान को भी सुनना पड़ता है। हालेलुया। एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक बूढ़ी माँ थी जो प्रभु में बहुत अटूट विश्वास करती थी, और बहुत उनका विश्वास अटूट था। तो वो क्या प्रेयर कर रही हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे 2 किलो चावल मिल जाए, तो प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे दाल मिल जाए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा ये सामान आ जाए। वो रोज ऐसे 1 हफ्ता रोज प्रेयर कर रही है। और एक व्यक्ति बाहर आकर, जो प्रभु को नहीं जानता है, बाहर से सुनता है, और वो रोज आप सुनता है कि ये दाल मांग रही, चावल मांग रही है, और इसकी जरूरतों का सामान मांग रही है रोज। 1 हफ्ते के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति जाकर पूरा सामान लेता है और लाकर वहां पर खड़ा हो जाता है। और वो बूढ़ी माँ प्रेयर कर रही थी, और वो व्यक्ति आया, प्रेयर जैसे खत्म होती, वो व्यक्ति आता है, कहता है ये लो सामान आ गया। वो कहती प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सारा सामान का इंतजाम कर दिया। वो व्यक्ति क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने नहीं सुना है, मैं लेकर आया हूं, मैं रोज सुनता था इसलिए लेकर आया हूं। वो बूढ़ी माँ क्या बोलती है कि जब मेरा परमेश्वर बोलता है तो शैतान को भी सुनना पड़ता है। हालेलुया। क्या उन्होंने बोला कि जब मेरा परमेश्वर बोलता है तो शैतान को भी सुनना पड़ता है। तो परमेश्वर किसी के द्वारा शैतान की हर एक चाल को उसी के ऊपर उल्टा देते हैं। जो गड्ढा को खोदता है वो उसी में गिरता है। हालेलुया। एक व्यक्ति एक दिन और आता है, वो परमेश्वर बोलते हैं, भजन संहिता आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो हर किसी को आहार परमेश्वर देते हैं, हर किसी को खिलाते हुए हैं, हर समय वो आहार देते। तो वो व्यक्ति आता है, बोलता है प्रभु हर किसी को तू ही आहार देता है क्या? रोज तू ही खिलाता है? प्रभु बोलते हैं हाँ मैं ही खिलाता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। वो व्यक्ति क्या करता है, छोटा सा एक डब्बी लेता है और उसमें चीटी को बंद कर देता है, और वो रात में सो जाता है, सुबह उठता है, फिर परमेश्वर के पास जाता है, बोलता है प्रभु क्या प्रतिदिन लोगों को तू ही खिलाता है? फिर से प्रभु की आवाज आती है हाँ मैं खिलाता हूँ।
तो बोलता है कि क्या इस चींटी को जो मैंने डब्बी में उसमें बंद कर दिया, क्या इसको भी आप ही खिलाते हैं? तो परमेश्वर की आवाज आती है कि उस ढक्कन को खोल कर तो देख। जैसे खोल कर देखते हैं, उस डब्बी के अंदर एक चावल का टुकड़ा फंसा होता है और वो चींटी धीरे धीरे उसको खा रही होती है। हालेलुया। क्या कर रहा होता है कि हम परमेश्वर को जांच नहीं सकते, हमारी सोच समझ से परे हैं। जहां से सोचते हैं वो योजना बना चुके होते हैं, वो छुटकारा ऑलरेडी रखा है, और क्या हम ले नहीं पा रहे हैं। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना, वो आपकी जिंदगी को जहाँ सूखी जमीन होती है, वो आपको ऐसी मुसीबतों में, दिक्कतों में, प्रॉब्लम में है, वो वहां से निकालेंगे। वो आपकी जिंदगी का हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ना कि उसमें डालेंगे नहीं वो आपको। और हम उन्हें, वो कितने भले हैं उनको जांचे ना, उनको परखे ना। जिस बात के लिए आपकी जिंदगी में जो चल रहा है, उसने कहा आप मुझसे प्रेम करते हो, आपके लिए सब बातें मिलकर भलाइयों को उत्पन्न कर रही है। क्योंकि वो ऐसा आप परखे ना उनको कि मेरी जिंदगी कुछ लोग कुड़कुड़ाने दे कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही, दिक्कत क्यों आ रही, मुसीबतों से निकल नहीं पा रहे, परेशानियां निकल बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे हो। पूरा तरीके से जब आपकी जिंदगी में सब भलाइयां, बुराइयों को खत्म करके भलाइयों में बदलने वाला परमेश्वर है, घटियों खत्म करके भरपूरी में बदलने वाला परमेश्वर है। वो चारों ओर ढाल बनकर, दाहिनी ओर आड़ बनकर वो रक्षा सुरक्षा करेगा। वो अपने पंखों की आड़ में रखता है। हालेलुया। ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से दिन दोपहर में उजाड़ता है, चाहे वो कैंसर के लोग क्यों ना हो। वो लोगों के सामने दिन दोपहर वो उजाड़ नहीं पाएंगे, वो रोग उजड़ जाएंगे, वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। और बस क्या है, प्रभु चाहते हैं, आपने देखा होगा, एक लास्ट बात बोलकर फिर प्रेयर में चलेंगे हम लोग। आपने देखा होगा, एक 10 रुपए का पानी का बोतल ले लो, और दूध कितने का मिलता है मुझे नहीं पता। यहाँ पर मिल्क 80 रुपए में, 80 रुपए मिलता है, 100 रुपए मिलता मुझे नहीं पता है मिल्क, ठीक है। तो दूध ले लो और 10 रुपए का पानी ले लो, और वो पानी को दूध में मिला दो। वो 10 रुपए का जो पानी का बोतल था, जब दूध के साथ मिलता है तो वो 80 रुपए बिकने लगता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में, चाहे कितने भी टूट गए थे, चाहे बिखर गए थे, चाहे कितनी बीमारी थी, चाहे कितना भी प्रॉब्लम था, जब हम उनके पास आते हैं, जब उनसे जुड़ते हैं, वो आपकी कीमत को बढ़ा देते हैं। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी की, आपकी कीमत को बढ़ा देते हैं, और आपका परिश्रम जो आप कर रहे हैं उनमें वो व्यर्थ नहीं है। वो अद्भुत तरीके से काम करना चाहते हैं, बस उनको मौका दीजिए और उन पर विश्वास रखिए। हर एक बीमारी को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक परेशानियों को वो आपकी जिंदगी से खत्म कर देंगे, हर एक प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर देंगे। वो अधूरा करने वाला, पर जब जिस काम को भी उन्होंने स्टार्ट किया है उसे पूरा ही करते हैं। हालेलुया। वो पूरा ही ऑलरेडी हो चुका है, पर क्या आप भरोसा रखते हैं? वो आशीषें आपको दे चुके हैं, क्या आप भरोसा करते हैं? वो बीमारियां खत्म कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कोड़े खा चुके हैं। क्योंकि एक कोड़ी आता है उनके पास, बोलता है प्रभु अगर तुम चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। वो बड़े तरस के साथ, प्रेम के साथ उसको कहते हैं तू जा, शुद्ध हो जा, और मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। आज भी चाहता कि मैं चाहता हूँ तुम लोग चंगे हो जाओ, आज भी चाहता तुम छुटकारा पा जाओ, आज भी चाहता है रिहा हो जाओ, हर शैतान के बंधन टूट जाए, आज भी चाहता है। और दूसरा व्यक्ति सूखे हाथ वाले को लेकर आते हैं, और वहां पर जब लेकर आते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे होते हैं, तो वो क्रोध से भर जाता है, गुस्से में होता है, फिर भी क्या कहता है कि हाथ उठा, और वो हाथ चंगा हो जाता है। हालेलुया। जब गुस्से में थे तब भी चंगा किया, और जब तरफ से भरे हुए थे, प्रेम दया से भरे हुए थे, तब भी वो चंगा किया। वो चंगाई तो आपको ऑलरेडी देगा, चंगाई तो वो देगा ही जब आप उसके पीछे चलेंगे। वो सबसे पहले आपकी जिंदगी को प्रॉब्लम, वो सब पहले क्या, जब प्रभु के पास आते हैं, उनको जिंदगी में जब आपके आते हैं तो वो सब चीजों को ठीक करते चले जाते हैं, वो सब चीजें ठीक होने लगेंगी। पर आपको लगेगा शुरू में कि वो चीजें ज्यादा बढ़ रही है, दिक्कतें प्रॉब्लम और बढ़ रही है, पर वो बढ़ेगी नहीं, वो सब खत्म हो रही है, क्योंकि शैतान उसमें उथल पुथल करेगा और लगेगा प्रॉब्लम बढ़ रही, बीमारी, डॉक्टर ने और कुछ बोल देगा। पर परमेश्वर के लिए 1 मिनट ही, 8 साल का सिलसिला होते यहीं पे परमेश्वर ने कैसे उसको चंगा किया, और 8 साल बाद वो चंगी हो गई। हालेलुया। तो ऐसे बाइबल में कितने दिन के लोग जो थे, सालों के, बीमारियों, प्रॉब्लम, परेशानी, उन्होंने परमेश्वर चंगा किया। तो बस क्या है, आप उनसे अच्छा रिश्ता जहाँ कहीं आपका टूटा हो उनसे बना के रखें, और आप अगर कह पाए यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आपकी जिंदगी, आपकी दिक्कतें नहीं है, फिर वो उनकी दिक्कतें हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब उनकी प्रॉब्लम है, तो वो सब यही खत्म कर देंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोगों से परमेश्वर ने बात की है, पर कोई तो यहाँ पर है जिससे बात की है, और कोई तो यहाँ पर है जिससे चाहते हैं परमेश्वर इसका ठीक करो, कोई तो है यहाँ पर जिसे वो चंगा करना चाहता है, और वो हर किसी की जिंदगी में काम करना चाहता है, पर एक टाइम रखा है सबके के लिए।
और वो चाहता है कि सब भवन में आए, छुटकारा पाए और खुशी जिंदगी बिताएं और हमेशा वहां पे रहने पाए। हालेलुया। तो जब वो आपकी जिंदगी में आएंगे, हर एक जिंदगी में आपकी जो सूखापन था, जो भी बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, दुख थे, परेशानी थे, या शैतान ने कितना भी आपके ऊपर बोझ डाल रखा था, वो कहता है बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज बोझ नशे का, दारू का कितना कष्ट लोगों को डाल रखा है, प्रॉब्लम मौत एक्सीडेंट का, कितने लोगों एक्सीडेंट में पड़े हैं, वो बोझ है उनके लिए। बीमारियों का बोझ डाल रखा है, कर्जों का बोझ डाल रखा है, घर में लड़ाई झगड़ों का बोझ डाल रखा है। और परमेश्वर कहते हैं तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरा सारा बोझ उठा लूंगा, तू जो हल्का और सहज है वो मैं तुझे दूंगा। उनकी शांति, उनका छुटकारा, उनकी चंगाई और भरपूरी और उनके आनंद का आप पूरी रीति से अनुभव करेंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगी को सेव नहीं रहने देगा। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करेंगे, बस उनके पीछे चलते रहिए, बने रहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जब दौड़ता है, अगर वो दौड़ रहा है और दौड़ में अगर वो पीछे देखेगा तो स्पीड कम हो जाएगी और दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाएगा। ऐसा ही होता है। और वो क्या होता है, जब दूसरे लोग यहाँ पे सब आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, और वो उन बीमारियों पर मन लगाए होते हैं, खड़े भवन में तो उनकी चिंताएं घर में कर्जों में लगी, परेशानियों में, लड़ाई झगड़ों में लगी है। यहाँ पर प्रभु से नहीं कह रहे, पर एक व्यक्ति पूरे मन से परमेश्वर को पुकार रहा है और वो दौड़ रहे तो वो क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं और वो रह जाते हैं, दूसरा चंगाई लेकर चला जाता है। तो परमेश्वर की गलती नहीं है, आपको बस जांचना है, आपको परखना है, आपको सोचना है कि आज यहाँ पर आए हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मैं चाहता हूँ सब लोग खड़े हो जाए। हालेलुया। आप सब लोग वेट करेंगे, खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने यहाँ पे अद्भुत तरीके से कार्य किए हैं परमेश्वर प्रभु, बात किया बच्चों के द्वारा प्रभु। मैं जानता हूँ परमेश्वर की जमीन जो भूमि सूखी थी या जिंदगी में जो भी घटी या परेशानी या प्रॉब्लम थी, मैं चाहता हूँ परमेश्वर आप सॉल्व कीजिए। आपका वचन कहता है तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, जो कभी टलता नहीं, मिटता नहीं, बिना काम करे कभी लौटता नहीं। वो जीवित वचन इनके शरीरों में भेजकर मैं पूरी चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं कमांड करता हूँ हर एक रोग को, आई कमांड यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके बॉडी से, इनके शरीर से हर एक दर्द इसी समय छोड़े, हर एक कैंसर का रोग छोड़े, हर किडनी का रोग छोड़े, हर एक हार्ट का रोग छोड़े, हर एक आंखों के रोग छोड़े, हर तरीका का रोग श्रापित हो। आई कमांड यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी आंख से, वचन से, सामर्थ से मैं कमांड करता हूँ इसी समय पूरा छुटकारा पाए, आजादी को पाए, रिहा हो जाए, बी डिलीवर, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा आत्मा छुए एक जन को प्रभु, तूने कहा है मैंने आप ही तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, सब प्रकार की बीमारियों को उठा लिया, मेरे मार खाने दुख उठाने से तुम चंगे हो चुके हो। और री बाबा शानदार आने वाले के अंदर रिखा कराना बात शानदार है। तेरा आत्मा एक लोगों को छुए और आजाद करे, हर एक रोग खत्म हो जाए, हर दुख खत्म हो जाए, हर बीमारी खत्म हो जाए, हर प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हर अशांति छोड़े। आई कमांड यू आउट इन जीसस नेम। इसी समय हर एक हर शैतान तेरा होल्ड टूट गया, तेरा हर एक होल्ड टूट गया इनके शरीरों से, इनके परिवारों से, इनके दिलों दिमाग से। ये माइंड की सोचो विचार बदल जाए, इनका जीवन रिस्टोर हो जाए। तेरे ब्लड के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा सभी के पाप क्षमा हो जाए। तेरा लहू एक एक लोगों को बढ़ाए और परमेश्वर प्रभु चंगा कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरे शरीर में से सब रोगों को दूर करूंगा। आज एक एक लोगों के शरीर में तेरा वचन जाए और हर एक रोग खत्म हो जाए, हर बीमारी खत्म हो जाए, हर दर्द पीड़ाएं खत्म हो जाए, हर कैंसर खत्म हो जाए, हर हार्ट की रोग खत्म हो जाए, किडनी की रोग खत्म हो जाए, कमर के बैक पेन छोड़कर चले जाए। आई कमांड यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जितने प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं, तेरा आत्मा इन्हें भी छुए और चंगा करे। मेरे छूले परमेश्वर सामर्थ्य दयावान, इनकी हर एक सूखी जमीन आज हरी भरी हो जाए। इसी समय हर बीमारी का आत्मा छोड़े। तेरा वचन जो पृथ्वी की छोर से जाकर छोर तक काम करता है, जो वचन कहता है खाली नहीं लौटता है। तेरा वचन भेजकर मैं चंगाई ऑनलाइन के लाइव जितने देख रहे हैं ये सभी चंगे हो जाएं। इसी समय हर बीमारी आउट, हर प्रॉब्लम आउट, हर एक दर्द आउट, हर इंग्लिफ्रेट आउट, हर प्रॉब्लम आउट हो जाए इनकी जिंदगी से और ये जिंदगी में खुद से अपना जीवन व्यतीत करने पाए। तेरी शांति को, तेरे छुटकारे को परमेश्वर मैं इनकी जिंदगी में रिलीज कर देता हूँ। हर बीमारी को मैं डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ, दूर करता हूँ। हर तरीका का रोग खत्म करने के लिए तेरा
धन्यवाद, इनकी परिस्थितियां बदल देने के लिए तेरा धन्यवाद, इनके जीवन को बदल देने के लिए तेरा धन्यवाद। आज प्रभु जितने भी लोगों ने तेरे वचन पर विश्वास किया, जितने का रिश्ता टूटा था उनका रिश्ता तुझसे मजबूत होने पाए और प्रभु से जुड़ने पाए और तेरे भवन में हिंदी चर्च परमेश्वर जो तेरी इच्छा के अनुसार चालू हुई है, तेरे बड़े हाथ को देखेंगे, तेरे बड़े साथ को देखेंगे, बड़ी कामयाबी को देखेंगे। जिस हिस्से में जहां भी ये लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं या जिस हिस्से में भी है उस हिस्से में परमेश्वर ब्लेस कीजिए, काम कीजिए। ये तेरे बेटा बेटियां हैं, इनको ऊंचा कीजिए मेरे परमेश्वर, इनके सभी रास्ते ओपन कीजिए। इनके घर परिवार में कोई बीमार था तो मैं कमांड करता हूँ घर परिवार से सब लोग खत्म हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, हर लड़ाई झगड़े का आत्मा छोड़कर जाए, हर दर्द छोड़कर जाए, हर बीमारी खत्म हो जाए, हर निराशाएं आशा में बदल जाए, हर बीमारियां चंगाई में बदल जाए, हर कमजोरियां ताकत में बदल जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, सभी की जिंदगी में काम करने के लिए और सभी को रोगों को खत्म करने के लिए, हर एक रोग हर एक मुसीबत खत्म हो जाए। प्रभु हर एक डॉक्टरों के शब्दों को हम कैंसिल करते हैं और एक स्वर्ग से नई रिपोर्ट को रिलीज कर देते हैं जिसमें लिखा है 39 कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, चंगा इनके जीवन में और इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में और बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े हो जाएं। और प्रभु परमेश्वर खुदावन ये चंगाई तक सीमित ना रहे बल्कि हमेशा हमेशा परमेश्वर आपके भवन में परमेश्वर और जब तक ये पृथ्वी पे रहे तो आपके भवन में आने पाए और हमेशा हमेशा आपके साथ स्वर्ग में रहने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने सभी की जिंदगी में काम किया है, तेरी शांति को देते खुदावन, तेरे छुटकारा को देने के लिए तेरा धन्यवाद। हर तरीका का जंगली बीज जंगली पेड़ को हम उजाड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं इनकी जिंदगियों से और परमेश्वर प्रभु जी यहोवा दरबार हर एक परमेश्वर सुख की जमीन को इनकी जिंदगी में हरा भरा कर दीजिए। हर एक किया धरा बेहतर हो जाए, हर लाइफ से बंधन टूट जाए, हर जादू टोने श्राप बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, क्योंकि आप मनुष्य नहीं झूठ बोले ना आदमी इच्छाओं को बदले। आपने कहा है आपके कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं, तो चंगे हो चुके मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने चंगा किया, नई ताकत नए बल से सामर्थ्य भरते, नए अभिषेक से परमेश्वर और अभिषेक के कारण हर जुआ टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बेचैनी खत्म हो जाए, हर बीपी थायराइड के रोग खत्म हो जाए, हर गुप्त रोग खत्म हो जाए, हर पथरियां गांठें खत्म हो जाए यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने चंगा किया, छुटकारा किया, धन्यवाद। फिर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस मीटिंग के लिए, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद। आगे परमेश्वर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, आराधनाओं के लिए, वचन के लिए, गवाहियों के लिए और परमेश्वर पर प्रार्थनाओं के लिए तेरा धन्यवाद। ये आपने एक जीवन में काम कर दिया, जीवन सेम नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ लाइफ में छुटकारा कर चुका है और बड़ी गवाहियों को देखेंगे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु सबको बहुत आशीष दें। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करना प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम कर दिया है और प्रभु से अच्छे तरीके से जो आपसे बात की है परमेश्वर ने तो आप उसी तरीके से साथ करें। जय मसीह की।